Hello students, in this video we are doing some question of your accountancy book chapter number 1 fundamental of partnership and topic is profit and loss appropriation account and partners capital account. Okay, so here I have taken question number 45 according to 2020 edition and this is question number 43 according to 2019 edition. You can see the partners name Amit and Vijay. If you have any edition like 2019 or 2020, see partner's name in your book and you will got the question. Amit and Vijay. Amit and Vijay are two partners in a firm who started business on 1st April 2019. Their capital contribution is 2 lakh and 1 lakh 50,000. This is the capital contribution, means this is the opening capital. According to the partnership deed, interest on capital is to be charged 10% per annum. Amit will get salary 2,000 per month. So for per year, it will be multiplied by 12. So it will be 24,000. Vijay will get salary 3,000 per month. तो पूरा per year का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Multiply by 12 करेंगे. So it will be 36,000. And net profit of the firm before above adjustment. ये adjustment करने के पहले मतलब ये चीजें अभी माइनस नहीं हुई है. Net profit firm की दी हुई है 2,16,000. Profit sharing ratio among the partners is 3:2. And interest on drawing, IOD, interest on drawing, Amit's interest on drawing is 2,200 and Vijay's interest on drawing is 2,500. You have to prepare profit and loss appropriation account. Okay? आपको profit and loss appropriation account draw करना है. So format draw करते हैं सबसे पहले profit and loss appropriation account का. ये हमारा format हो जाता है. Particulars, amounts, particulars and amount. Here we write heading profit and loss appropriation account. This is debit side and this is credit side. As we know, we will start this account by the credit side if net profit is given. So by profit and loss account, in bracket we will write profit. How much? It will be 16,000, 216,000, 2,16,000. Here we write above adjustments. Interest on capital to interest on capital. How much? Amit's capital account में कितना ट्रांसफर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अमित का कैपिटल कितना है? 2 लाख. 2 लाख का 10% मीन्स क्या हो जाएगा? 20,000. एंड विजय's कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? 150 का 10%. सो ये कितना हो जाएगा? 15,000. सो आंसर विल बी टोटल फाइनल आंसर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 35,000. नेक्स्ट इज अमित सैलरी एंड विजय सैलरी. सो हियर वी राइट टू सैलरीज. अमित कैपिटल अकाउंट में कितना सैलरी ट्रांसफर होगा? अमित का सैलरी आ जाएगा 24,000 एंड विजय कैपिटल अकाउंट में क्या सैलरी ट्रांसफर होगा? 36,000. सो टोटल विल बी 60,000 ऑफ सैलरी. नेक्स्ट इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट ये हम पोस्ट कर चुके हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम का आइटम है पार्टनरशिप फर्म के लिए. सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स Amit's capital account and Vijay's capital account. How much? 2,200 and 2,500. So total will be 4,700. 22 plus 25. Any remaining adjustment is there or not? No. Nothing is remaining. So we will finalize it. टोटल कर लेंगे इधर का हम लोग. ये आ जाएगा टोटल आपका 7, 6 plus 4, 10 कैरियर 1, 22,070. सो ये आपका टोटल आ जाता है. अब इसमें से आप डेबिट साइड माइनस कर लीजिए. डेबिट साइड का टोटल जो है हमारा कितना हो जाएगा? डिडक्ट कर लेंगे. ये टोटल हमारा हो जाएगा 0,005 एंड 3 plus 6, 9. सो वी विल डिडक्ट 25,000 एंड आंसर विल बी 10 minus 5, 11 and 1, 1,257,000. This is your divisible profit which we will distribute in the ratio of 3:2 divided by 5. 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 5 0 is 0. It multiplied by 3. So multiplication of 3 with it will be 4 3s are 12, 2 carry 1, 3 1s are 3, 4, 5 3s are 15, carry 1, 3 2s are 6 and 7, 7,5,420. This is the amount of first partner's share and then it will be multiplied by 2. So we will get Vijay's share. 4 2s are 8, 2 1s are 2, 5 2s are 10, 2 2s are 4, 5,280. So this is the final amount. So profit transferred to
Amit's capital account and Vijay's capital account. How much? Amit's share will be 75420 and Vijay's share will be 50280. So total will be 125700. This is your divisible profit. Clear? This is the way you have to solve the question. In this question you have to prepare only profit and loss appropriation account, and this is your profit and loss appropriation account. Next I am taking question number 48 according to 2020 book. This is question number 48, but according to 2019 book this is question number 45. Partner's name are Sajal and Kajal. See this question in your book. Sajal and Kajal, these are two partners. I am reading question. Sajal and Kajal are two partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Two partners, Sajal and Kajal, profit sharing ratio is 2:1. On 1st April 2018, their capital account was rupees 50,000 and 40,000. Means this is the opening capital. How much? This is 50,000 and this is 40,000. Clear? Sajal and Kajal are two partners with the opening capital. Started partnership firm with the opening capital 50,000 and 40,000. You have to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. This is your work. And after following the following items, you have to do following items. First, interest on capital. Interest on capital 5% per annum. Next, interest on loan and advance by Kajal. Means one partner Kajal. This second one partner give loan to the firm. Interest on loan. So she will get interest on loan. Loan amount is how much? Loan amount is 30,000 for whole year. Loan is given for whole year. So 30,000 into, if any partner give loan to the firm, so if interest on loan amount, interest rate is not given in the question, so we will charge interest at the rate 6%. Okay, 6 3s are 18. So 1800 will be interest on loan. Clear? Next, interest on partners drawing 6% per annum. IOD will be 6% per annum. Okay. Next, drawings were 10,000 and 8,000. Drawings amount were 10,000 and 8,000. So 10,000 for Sajal and 8,000 for Kajal. Now next data is given. 10% of the profit is transferred to the general reserve. Means whatever will be your divisible profit, 10% of it, 10% of divisible profit will be transferred to general reserve. Next, net profit is given, that is 68460. Net profit is given, that is 68460. 68460. You have to solve the question. Clear? इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रॉब्लम रहेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन और एक एडजस्टमेंट होता है रेंट का. ये हमेशा क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आप कभी मत डालिएगा. इनको आप कहाँ पोस्ट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो हम इसको कहाँ पोस्ट कर लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करेंगे. ओके, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. ओके, मैंने ये शॉर्ट में राइट कर दिया है. यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन. डेबिट में क्यों लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन? क्योंकि फर्म ने पार्टनर काजल से लोन लिया है, बदले में इंटरेस्ट पे करेंगे, तो फर्म के लिए ये एक्सपेंस है. 1800 हमने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है. नेट प्रॉफिट इज गिवन, दैट इज 68460. ये वो नेट प्रॉफिट है जिससे आप अपना क्या स्टार्ट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पर चेक करना है तो मैं आपको बता देती हूँ एक तरीका इसको चेक करने का, कि कहीं कुछ एडजस्टमेंट यहाँ तो होगा नहीं इसका. ये बोला हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है 68460 का. हम इसको लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रॉफिट. ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट से आती है, यहाँ डेबिट में निकलती है, तब इसको हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में
क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं, मतलब ये प्रॉफिट हमें यहाँ भी लिखनी पड़ेगी 68460। ये क्या निकली होगी, यह जगह नेट प्रॉफिट निकला होगा हमारा, तो प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे, इनका हम एडिशन कर लेते हैं। इनका एडिशन हो जाएगा आपका 0 6 8 प्लस 4 12, करिए 1 8 9 10 70260। तो ये हो गया 70260, मतलब एक्चुअल में जो फर्म का प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 70260। इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन 1800 डिडक्ट होगा तो कितना बचा बैलेंस 68460। इससे हमारा नेट प्रॉफिट से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होगा। अब बाकी सारे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा हमारा 5% देना है, ये सजल्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा और ये काजल्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कितना 50,000 का 5% मीन्स 2500 एंड 40,000 का 5% मीन्स 2000, so it will be 4500. Clear? Next adjustment is for salary. Is there any salary? No. Interest on drawing is there. We will find out by interest on drawings. Okay. Sajal's capital account and Kajal's capital account. So here date of drawing is not given in the question, only amount is given and rate is given of interest on drawing at the rate 6% per annum. Per annum मतलब होता है पूरे साल का, पर इन्होंने ये तो बताया नहीं है कि पार्टनर ने ड्राइंग किस डेट में की हुई है, तो हम एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सजल के लिए इंटरेस्ट निकल आएगा 10,000 इंटू 6/12 इंटू 6/100 एंड काजल के लिए जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे 8,000 इंटू 6/12 इंटू 6/100। 6 2 12, 2 3 6। सजल का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आया 300 एंड काजल्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी 240, so total will be 540. 300 and 240, it will be 540. नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो आंसर यहाँ निकलता है क्रेडिट माइनस डेबिट करके, वो क्या होता है डिविजिबल प्रॉफिट होता है, पर इन्होंने बोला है कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट वो निकले उसका 10% जनरल रिजर्व को देना है। तो हम पहले रफ नेट प्रॉफिट रफ डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये है 68460 प्लस 540। समेशन करें इनका, कितना हो जाएगा समेशन, ये आ जाएगा आपका 69,000। इसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं 4500, सो आंसर विल बी 64500। ये आई रफ नेट रफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या है आपका 6,45,000, दिस इज योर रफ डिविजिबल प्रॉफिट। इसका 10% हमें देना है जनरल रिजर्व को, तो इसका 10% निकलेगा 645 और ये 10, तो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं टू जनरल रिजर्व 6450 6450। आप चाहें तो ब्रैकेट में शो भी कर सकते हैं। हमने कैसे फाइंड आउट किया है, हमने पहले रफ डिविजिबल प्रॉफिट निकाली, उसका 10% हमने जो है जनरल रिजर्व को दिया, तो वो आया 6450। अब हम फाइनल नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अभी हमने एक इतना स्टेप कर लिया था 64500, अब इसको और डिडक्ट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा फिर पार्टनर्स में, सो इट विल बी 58050। योर आंसर विल बी 58050। अब इसको हम क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3, तो 58050 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2:1 डिवाइडेड बाय 3, so it will be 3 1s are 3, 3 1s are 3, 28, 6 18 3 7 3 8 24, 3 9s are 27, and it will be 3 3s are 9 and 3 5s are 15 and 0. So we multiplied it by 2, so we will get the share of Sajal, and when it multiplied by 1, so we get the Kajal's share. To profit transfer to, कितना प्रॉफिट आया हमारा 58050, जिसको हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, सजल्स कैपिटल अकाउंट में डाला और काजल्स कैपिटल अकाउंट में डाला। तो ये काजल का तो 19350 का इंटू कर लेंगे 1 से, तो सेम अमाउंट आ जाएगा, और सजल का आ जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो आ जाएगा 38700। यहाँ टोटल आप दोनों साइड राइट कर दीजिए, हमारा टोटल आया था 69,000 एंड 69,000। ये प्रॉपर पे है
अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने बोलते हैं तो आप ऐसे करिए, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के उसको शो कर दीजिए। अब इन्होंने आगे क्वेश्चन में बोला हुआ था कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी शो करके बताइए, मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। अब अगर किसी क्वेश्चन में कोई मेथड ना दी हुई हो कि हमें किस मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है, सो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल टेक फ्लक्चुएटिंग मेथड। हम किस मेथड को यूज करेंगे? फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज करेंगे। और आपको पता है फ्लक्चुएटिंग जो मेथड होती है उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और जो फिक्स मेथड होती है उसमें 2 अकाउंट्स ड्रॉ होते हैं, एक होता है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर इज सज्जल एंड सेकेंड वन इज काजल। पर्टिकुलर्स सज्जल एंड काजल। Here we write heading partners capital accounts. Okay. स्टार्ट कहां से करते हैं? क्रेडिट साइड से। सबसे पहले कैपिटल डालते हैं पार्टनर्स की, जो ओपनिंग कैपिटल है। सो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल क्या थी? 50,000 एंड 40,000। ये राइट करेंगे 50,000 एंड 40,000। इसके बाद मैं आपको सजेशन देती हूँ कि सबसे पहले आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करेंगे, सारे एडजस्टमेंट ट्रांसफर कर लेंगे बट क्या रह जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर उनका आंसर गलत आने लगता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करो। यहाँ देखिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ। जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में प्रॉफिट ट्रांसफर हुई है, तो जनरल एंट्री क्या बनी होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सजल्स कैपिटल अकाउंट टू काजल्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री में सजल का और काजल का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो ये उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट है और ये उनका क्रेडिट है। यहाँ हम ट्रांसफर कर देंगे। अपोजिट आपने लास्ट ईयर लेजर सीखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सजल्स कैपिटल अकाउंट टू काजल्स कैपिटल अकाउंट। तो सजल और काजल के डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड, ये इनका क्रेडिट है, इन दोनों के क्रेडिट में अपोजिट वाला नेम, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कितना ट्रांसफर कर देंगे? जो प्रॉफिट का शेयर हम लोगों ने निकाला था 38,700, और जो सेकेंड पार्टनर है उसका कितना आ जाएगा? 19,350। अब बाकी एडजस्टमेंट हम राइट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो अमाउंट जिस पार्टनर की है उसके कॉलम में पोस्ट करते जाइए 2000। जनरल रिजर्व यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर करने से पहले हम पार्टनर्स की ड्रॉइंग राइट कर देते हैं। ड्रॉइंग्स 10,000 ऑफ सजल एंड 8,000 ऑफ काजल। उसके बाद आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 300 एंड 240। 300 एंड 240। अब कोई एडजस्टमेंट नहीं देगी रह गए। एक बार आप अपनी बुक, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक बार अपनी बुक को लेके सारे एडजस्टमेंट चेक कर लीजिए कि कहीं कोई एडजस्टमेंट छूट तो नहीं गया है। अगर कोई छूट गया होगा एडजस्टमेंट तो आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए आप जरूरी है कि एक बार चेक कर ले। सारे एडजस्टमेंट हमने पोस्ट कर लिए। हम फर्स्ट पार्टनर सजल का आंसर निकाल के देखते हैं। सजल के क्रेडिट में से सजल का डेबिट माइनस, तो पहले सजल के क्रेडिट का समीशन कर लेते हैं। सजल के क्रेडिट का समीशन आ जाएगा हमारा 91,200। इस साइड का टोटल आया 91,200। इसमें से डेबिट अमाउंट माइनस कर देते हैं 10,300। सो आंसर विल बी 80,900। फर्स्ट पार्टनर का आंसर आया 80,900। जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड आता है, तो 91,200, 91,200। क्लियर। अब इसका टोटल करते हैं। काजल के क्रेडिट का टोटल आ जाएगा 053, 61,350। इसमें से हम माइनस कर देंगे 8240। सो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 1, 11 माइनस 8 it will be 2, no it will be 3 and 5, 53100। this is your final answer। जो बड़ा टोटल है वो राइट करेंगे दोनों साइड। याद रखिए जैसे आप लास्ट ईयर लेजर्स बनाते थे ना 11th क्लास में, वैसे ही आपको ये ड्रॉ करना है। ये सिर्फ पार्टनर्स का लेजर है। अब हम एक बार बुक में आंसर चेक करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सजल 80,900 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ काजल 53,100। करेक्ट। अब इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि ये तो ओपनिंग कैपिटल थी, पूरे ईयर के एडजस्टमेंट कर दिए, तो अभी क्या निकल आए? क्लोजिंग कैपिटल। तो बाय बैक टू बैलेंस कैरी डाउन। अब जब नेक्स्ट ईयर बिजनेस की जो अकाउंटिंग होगी
उसके लिए ओपनिंग बैलेंस का काम ये करेगा, मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में अब नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस बताएंगे। क्लियर, ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 47 अकॉर्डिंग टू माय बुक 2019 book, and from 2020 book it will be question number 51. Okay, 2020 के एडिशन में ये 51 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में रीड करती हूँ। ABC are three partners हैं ABC, A, B and C. ABC are three partners in the firm with a capital of 50,000, 50,000 and 1 lakh. ये इनका capital contribution है। Current account balances are given in the question A, B and C. How much? It is 10,000, 5,000 and 2,000. 10,000, 5,000 and 2,000. Here debit word is written means इनका डेबिट बैलेंस है C का। अब ये कैपिटल भी दी हुई है और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है, मीन्स ये कौन सी मेथड को फॉलो करते हैं? फिक्स मेथड को फॉलो करते हैं। According to the partnership deed, interest on capital is to be allowed to the partners. Interest on capital हमें 10% पर एनम की रेट से चार्ज करना है, अलाउ करना है पार्टनर्स के लिए। According to the C being the working partner was also entitled for the salary. C को सैलरी देना है और वो कितनी देनी है? 12,000 पर एनम। 12,000 पर एनम का हमको सैलरी देना है पार्टनर को। The profit were to be distributed in the following proportion. अब इन्होंने यहाँ प्रोपोर्शन दिया हुआ है कि जो भी आपका आंसर है उसमें से फर्स्ट 20,000 आपको कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिमेनिंग आपका कितना दिया हुआ है? रिमेनिंग 30,000 आपको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5:3:2 में। इसके बाद जो 30,000 बचेगा उसको 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा एंड रिमेनिंग जो भी प्रॉफिट बचेगी उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसके लिए ये एडजस्टमेंट है। पहले डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जो नेट प्रॉफिट फर्म की दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 1,72,000। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब क्या करें हम लोग? सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने बोला है। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या करने बोला है इन्होंने। यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड जनरल एंट्री वी हैव टू डू। ओके, so firstly we will start with by profit and loss net profit। यहाँ राइट करेंगे कितना दिया हुआ है? 1,72,000। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या राइट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A, B एंड C। व्हाट वी विल राइट हियर? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे मेथड कौन सी है? फिक्स्ड है, तो हम यहाँ क्या वर्ड यूज करेंगे? करंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होती तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल। अब 50,000 का 10% मीन्स 5,000, 50,000 का 10% मीन्स अगेन 5,000 एंड 1 लाख का 10% मीन्स 10,000। तो टोटल विल बी 20,000 ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सी पार्टनर को सैलरी देना है। तो टू सी सैलरीज किसको देना है? आपको सी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा ये हमारा? 12,000 पर एनम दिया हुआ है। तो सी इज करंट अकाउंट। यहाँ भी हम वर्ड यूज करेंगे करंट अकाउंट। So total will be 172,000 minus 20 plus 12,000। हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। फाइनल 20 plus 12 32,000 आ जाएगा। तो हमारी नेट प्रॉफिट आ जाएगी 1,40,000। अब इन्होंने बोला है कि आप इसका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं? एक छोटा सा वर्किंग नोट ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमारे लिए बहुत हेल्प मिलेगी डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आप इसकी हेडिंग चाहे तो दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, here three partners A, B and C। A is our account, this is B's and this is C's account। फर्स्ट ये हमारा टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 1,40,000। अब 140 में से जो फर्स्ट 20,000 है उसको आप कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो जो कैपिटल है इसका हम प्रोपोर्शन बनाते हैं 40 एंड 40 कट करते हैं। 5 1 5 5 एंड 5 2 10। तो रेशियो बन गया 1:1:2 डिवाइडेड बाय 4। सो इट विल बी 4 5 20। तो आएगा आंसर 5,000 फॉर A, 5,000 फॉर B एंड 10,000 फॉर C। अब 140 में से 20 चला गया, 90 और बचा है। 140 में से 20 निकल गया। इसके बाद इन्होंने बोला नेक्स्ट 30,000 को आप 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 3 15,000।
ये आ जाएगा 9000 एंड ये आ जाएगा आपका 6000, 532। अब देखिए नेक्स्ट रिमेनिंग कितना बचा, 140 में से 20 गए तो 90 बचा, 90 में से 30 गए, आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं 140 माइनस 20 तो कितना बचा 90, 90 में से 30 गया तो अब कितना बचा हमारे 140 माइनस 20 किया तो ये बचा 1,20,000, 120 में से 30 गया तो हमारे पास बचा 90,000। एक जिगजैग टाइप से आप बना सकते हैं ऐसे कि 140 माइनस 20 तो बचा 120, 120 माइनस 30 तो बचा 90,000। अब इस 90,000 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली 1:1:1 डिवाइडेड बाय 3, सो इट विल बी 30,000 एंड 30,000। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। फर्स्ट शेयर आ जाएगा हमारा कितना 45,000, नो इट विल बी 30 प्लस 45 प्लस 5, 50,000 and next share will be 44,000 and this will be 30 plus 40, 46,000. Okay, you can check your answer in your book. It answer is 150,000, 44,000 and 46,000. अब हम इसको यहाँ शो करते हैं। ये आ गया 140,000, 172,000 to profit transfer to A's current account, B's current account and C's current account. करंट अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि फ्लक्चुएट फिक्स्ड मेथड है। ये अमाउंट ऑफ फाइनल डालेंगे 50,000, 44,000, 46,000। जब कभी भी क्वेश्चन में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंस दिए हों तो समझ जाइए फिक्स्ड मेथड फॉलो करते हैं, तो सारी चीजें कहाँ ट्रांसफर होगी, करंट अकाउंट में। और अगर कोई मेथड नहीं दिए तो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी फ्लक्चुएटिंग मेथड है। अब इन्होंने बोला है अकाउंट तो आपने बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया, डिविजिबल प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर दिया। इसके बाद इन्होंने बोला है अब आप क्या जनरल एंट्री ड्रॉ करके बताइए, जनरल एंट्री क्या बनेगी। तो जनरल एंट्री बना लेते हैं, मैं ओरली बनाती हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इसके क्रेडिट में गया तो फर्स्ट एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 172, 172। ये फर्स्ट एंट्री यहां से बन जाएगी। सेकेंड एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट टू बीज करेंट अकाउंट टू सीज करेंट अकाउंट, ये सेकेंड एंट्री बनेगी। थर्ड एंट्री बनेगी सैलरी की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सीज करेंट अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 12,000 बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू द करेंट अकाउंट। और यहाँ बनेगा लास्ट एंट्री बनेगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करेंट टू बीज करेंट टू सीज करेंट 1,40,000 का। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। 4 एंट्री में ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूं वो है क्वेश्चन नंबर 53। अमित, विनीता एंड चारू, दीज आर द पार्टनर्स नेम, अमित, विनीता एंड चारू, these are 3 partners in a firm. Question number 53 for 2019 or also for 2020 edition. Okay, question number 53. Amit, Vinita and Charu, these are 3 partners, Amit, Vinita and Charu, these are 3 partners in a firm. Their capital stood as on 1st April 2018 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh. Their capitals were given as 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh. Next, it was decided that they would receive interest on capital at the rate 5% per annum. This is the rate of interest on capital. Amit would get salary of 10,000 per month. Amit's salary is of 10,000 per month. तो हम इसको per year में convert करेंगे, 10,000 into 12, 1,20,000. Clear? Next, Vinita. Adjustment for Vinita is there. Vinita would receive commission 5% of net profit. 5% of net profit. जो भी net profit दी है उसका 5% विनीता को कमीशन चाहिए आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन मीन्स जो भी हमारी 100% नेट प्रॉफिट होगी उसमें से हमें कमीशन का भी डिडक्शन करके उसको फाइनलाइज करना है। मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेक्स्ट अब इन्होंने दिया है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड
जनरल रिजर्व। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आपको नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व को भी देना है, और जो हमारी नेट प्रॉफिट दी है वो इस ईयर की नेट प्रॉफिट दी हुई है 5 लाख। नेट प्रॉफिट इज गिवन दैट इज 5 लाख। ये हमारा पूरा क्वेश्चन। यहां से ये एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, अमित सैलरी 10,000 पर मंथ, so multiplied by 12, 1,20,000 per year. Vinita would get 5% of net profit after charging. After charging, after deduction means after charging. 10% of the net profit transferred to the general reserve, and net profit for the year is 5 lakh. You have to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. आपको क्या क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है। अब ये बताइए, कोई यहाँ पे मेथड तो दी नहीं है, तो इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम क्या सोचेंगे? फ्लक्चुएटिंग मेथड। हम क्या लेके चलते हैं कि ये कौन सी मेथड यूज करते होंगे? फ्लक्चुएटिंग मेथड्स। ओके, सो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। सबसे पहले हम यहाँ राइट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में आ जाएगी हमारी नेट प्रॉफिट विच इज 5 लाख। अब हम एडजस्टमेंट करते हैं। इन्होंने बोला 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अभी सारे एडजस्टमेंट के पहले ये जो नेट प्रॉफिट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है पहले वो करिए। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। तो क्या करेंगे? जनरल रिजर्व को कितना देना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो 5 लाख हमारा नेट प्रॉफिट, इसका 10% मीन्स 10/100, तो कितना आ जाएगा? 50,000 ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, विनीता वुड गेट 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कमीशन किसका है? ये विनीता का। विनीता का कमीशन फाइंड आउट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट है 5 लाख, विनीता को 5 लाख मतलब नेट प्रॉफिट पे 5% कमीशन चाहिए, और आफ्टर डिडक्शन मीन्स ये जो प्रॉफिट 100% है इसमें आप कमीशन ऐड करके बताइए। तो मतलब 100% नेट प्रॉफिट में 5% और ऐड हो जाएगा, मतलब 105 आफ्टर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5। 21 की टेबल को पढ़ना पड़ेगा। 21 2 42, कितना बचा है? 80। 21 3 63, और ये बचेगा आपका 70, 170। 21 8 जा 168, 20 बचा। 21 0 जा 0, और ये आ जाएगा 200। 21 9 जा 189 समथिंग हो जाएगा, और ये आ जाएगा 21 4 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये आ जाएगा 23,810। इसको राउंड ऑफ करके हम बना लेते हैं 23,810। तो ये आ जाएगा आपका 2 विनीतास कमीशन अमाउंट आ जाएगा 23,810। क्लियर। अब बाकी सारे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कौन कौन है? अमित, विनीता एंड चारू। इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 1 लाख का कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5%। तो 1 लाख का 5% हो जाएगा 5,000, 2 लाख का 5% हो जाएगा 10,000, और 3 लाख का 5% हो जाएगा 15,000। सो टोटल विल बी 30,000। ओके, नेक्स्ट एक और एडजस्टमेंट है सैलरी, पार्टनर की सैलरी। 2 अमित 2 सैलरीज, ऐसे राइट करिए 2 सैलरीज। अमित कैपिटल अकाउंट मीन्स एज कैपिटल अकाउंट, कितना सैलरी ट्रांसफर हो जाएगा? 1,20,000। ओके, सो अब हम इसको फाइनलाइज करते हैं। टोटल लगा लेते हैं पहले, यहाँ डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। दिस इज 1,20,000, 50,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 80,000, 50,000 प्लस 30,000 80,000, 80,000 प्लस 1,20,000 2 लाख प्लस 23,810। डिडक्ट कर लेते हैं। 5 lakh minus 223,810. So it will be 10, 9, 9, 9 and 4. It will be 2, 7, 9 minus 3, it will be 6, 9 and 9 minus 8, 1. 276,190. You can check it in your book. Yes, it is correct. 276,190. 276,190. अब क्या करेंगे? इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हमारा 5 लाख है, ये दोनों साइड आ जाएगा टोटल 5 लाख एंड 5 लाख। ओके, अब इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
क्योंकि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है कि पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में इक्वली इसको शेयर कर देंगे। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's capital account, B's capital account and C's capital account। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तीनों पार्टनर्स में। 27160 इन द रेशियो ऑफ 1:1:1 डिवाइडेड बाय 3। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3 9s are 27, 3 2s are 6, 3 0s are 0, 3 6s are 18, 3 3s are 9 and 3 3s are 9। इस पॉइंट में आ रहा है आंसर 92063, 92063 और 92063। अगर हम पॉइंट को डिडक्ट छोड़ देते हैं, अब क्या करेंगे इसको हम, क्योंकि हमें लास्ट में क्या चाहिए, 0 चाहिए। आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था तो किसी एक चीज को आप राउंड ऑफ में, किसी एक नंबर को आप राउंड ऑफ में कर लीजिए तो ये आपका फाइनलाइज यही आने लगेगा। क्या आने लगेगा, 276190। अगर आप इसको 3 रहने देते तो यहाँ 9 आता, तो आपको बाद में करना ही पड़ता, तो इससे बेटर आप यही कर लीजिए। तो 92063, 92063, लास्ट वाले का ले लेते हैं 92064। अब इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट बोला हुआ है आपसे कि यू हैव टू ड्रॉ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो। आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी ड्रॉ करके बताना है। तो मैं यही नीचे कर देती हूँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ। 3 पार्टनर्स आर देयर, Amit, Vinita and Charu। Here I am writing ABC। मैं शॉर्ट में नेम राइट कर रही हूँ। जब भी आप भरना है तो आप पूरा कंप्लीट जो होता है ना वे वैसे ही करिएगा, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं बोर्ड में। फिर आप पूरा कंप्लीट राइट करिएगा। पर्टिकुलर्स अमित, विनीता एंड चारू। मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ ABC, अमित, विनीता एंड चारू। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, आपको कैपिटल राइट करनी है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल इज गिवन 1 lakh, 2 lakh एंड 3 lakh। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि आप क्या करिए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का जो एप्रोप्रिएशन का आंसर आया डिविजिबल प्रॉफिट उसे ट्रांसफर करिए। अदरवाइज अक्सर बच्चे भूल जाते हैं ये चीज ट्रांसफर करना। तो पहले आप इसी को ट्रांसफर कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आप ट्रांसफर करिए। जनरल रिजर्व तो इसमें जाना नहीं है। विनीता's कमीशन, विनीता का कमीशन है, बाय कमीशन विनीता के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। दिस इज 23810। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर्स का है 5000, 10,000 एंड 15,000। ओके, नेक्स्ट क्या ट्रांसफर करना है, सैलरी। किसकी है, अमित की है। बाय सैलरीज अमित के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। कितना, 1,20,000। अब कोई और चीज नहीं, तो पहले अमित का आंसर निकालते हैं। अमित का आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अमित का टोटलिंग करते हैं। यहाँ का 1 lakh प्लस 1,20,000, 2,20,000, 2,20,000 प्लस 5,000, 2,20,000 प्लस 5,000 एंड प्लस 92063, 92063, 360, 5 plus 2 7, 9 plus 2 10, 11, carry have 1 and 2 plus 1 will be 3। अब आंसर चेक कर लीजिए। यस, इट इज करेक्ट। 2 बैलेंस कैरी डाउन 317063। अब ये 317063 ये दोनों साइड हम राइट कर देते हैं। ये फाइनल आंसर है हमारा। यहाँ का कैलकुलेशन करते हैं। 2 lakh प्लस 10,000, 2,10,000, 2,10,000 में हम ऐड करेंगे 2 आइटम्स है 23,810 एंड 93,000 एंड 92,063। ये प्रॉफिट अमाउंट है। ये प्लस कर लेते हैं हम 3,25,873। दिस इज द आंसर ऑफ Vinita। 325,873 and now we will do finalization of account। 325,873, 325,873 and now last partner is this चारू। अब हम चारू के अकाउंट को फाइनलाइज करते हैं, सबमिशन कर लेते हैं। 3 lakh प्लस 15,000, सो इट विल बी 3,15,000। टोटल आ जाएगा 3,15,000 और उसमें 1 आइटम और ऐड करना है 92063।
6 4, so it will be 4 6 0 5 plus 2 7 9 plus 1 10 4 0 7 0 and 6 4. इसको अब हम फाइनलाइज करते हैं 4 0 7 0 6 4 4 0 7 0 6 4. So this is final now. Profit and loss appropriation account and partners capital account. Okay. सो स्टूडेंट्स, अब आप इसके और क्वेश्चंस जो हैं इस बुक में जो दिए हैं टीएस अग्रवाल बुक में, आप उनको प्रैक्टिस करिए. कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछिए. इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास का वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पास्ट एडजस्टमेंट और इनअप्रोप्रिएट अकाउंट्स पास्ट एडजस्टमेंट. ओके.